And then today, this morning, I want to speak about the consequences of abiding in the Lord Jesus Christ, that is bearing fruit. खुदावंद यीशु मसीह में बने रहने का जो सबसे मुख्य जो consequences है वो है कि हम फलवंत हो सकते हैं और होंगे, और खुदा की ये मर्जी भी है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा था, when he was teaching his disciples, something tragic happened. You know what was that tragedy that happened? Well, Jesus was teaching his disciples this. One of the apostles, one of the chosen disciples out of the 12 was missing. This very night when Jesus was giving this teaching. What was his name? Judas Iscariot. And where was he? कहाँ था वो? Betraying for a small amount of money his guru to the Jewish leaders. And that's a very tragic incident while this teaching was being given. But a very tragic event also reminds us that it can happen to you and to me. I want to look today at the consequences. If we are not like Judas, if we don't want to be like Judas, if we don't want to have the consequences of Judas's life, then what would be the consequences of abiding in Jesus Christ? खुदावंद यीशु मसीह में सच्ची दाखलता में बने रहने से क्या होगा? हमारे पास दो choices हैं. You can be a branch that is truly abiding in Jesus Christ. You can be a real Christian and thus bear fruit. It all goes together. सच्ची दाखलता, सच्चे चेले, सच्चा fruit उनके जीवन में, फल उनके जीवन में आ सकता है. Secondly, you can be a disciple of Jesus. You can hang around with him. You can hang around with the church. You can have a facade of being a Christian and a disciple of Jesus Christ, and yet be so far away from him that you end up being condemned forever and ever without any hope of any redemption. खुदावंद यीशु मसीह के चेले बने रहने का, उसके कहलाने का, हम एक मास्क पहनकर घूम सकते हैं और उससे हम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, और उनका हश्र वही होगा जो यहूदा का हुआ था. Now, one of the blessings of truly abiding in the branch in Jesus Christ is that we bear fruit. पढ़ दीजिए मेहरबानी से यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 5 पद. आज हम 5 से 8 पदों को और उसके बाद 11वें पद को आज के मैसेज में हम देखेंगे. जो मुझ में बना रहता, ये पिछले हफ्ते हमने देखा था, मैं उनमें बना रहूंगा, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि you will be a fruit bearing branch. You will bear much fruit. खुदावंद यीशु मसीह में जो बना रहता है उसके लिए यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि an abiding branch is a fruit bearing branch. खुदावंद यीशु मसीह में जो दाखलता बनी रहती है, जो शाखा बनी रहती है, वो सूखी नहीं रहती है, और वो सूखी दाखलता कभी नहीं रह सकती यदि वो सच्चे रूप से, सच्चे डिसाइपल के रूप में उससे बनी रहती है. यीशु मसीह ने, मालूम होगा आपने पहले भी कई जगह कहा है, उसने कहा एवरी गुड ट्री ब्रिंग्स गुड फ्रूट. हाउ वुड यू नो द ट्री? कैसे हम सच्चे पेड़ को जान सकते हैं? सच्चे पेड़ की पहचान उसके फल से होती है. कभी एप्पल में आम लगे हुए देखे? नहीं. खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि बी देयर फ्रूट यू शैल नो देम, क्योंकि तुम उनके फल के द्वारा से तुमको पहचान लोगे कि वो कौन से पेड़ से आए हैं. Now there will always be fruit in a believer's life. एक मसीह के जीवन में, सच्चे चेले के जीवन में हमेशा फ्रूट होना चाहिए. There is no such thing as a fruitless believer in Jesus Christ. That is a oxymoron. एक फल रहित यीशु का चेला हो ही नहीं सकता. Either you are in Jesus Christ
abiding in Him, and if you are abiding in Him, you are bearing fruit, or you are fruitless, and therefore, as a consequence, not abiding in Him. Now why, secondly, why is fruit so important? Why is Jesus talking about this fruit at this time? And you think if Jesus Christ is the only one who is talking about it? No, my dear friends. As a Christian, why don't I just get baptized, get confirmed, live my life as I want, just hang around with a couple of Christians, and then ultimately, by and by, pie in the sky, go to heaven? Friends, I wish it was that easy. And if you want that, I'm sorry, you are in the wrong place. It's no by and by, pie in the sky. Ultimately हम स्वर्ग में चले जाएंगे क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि हमारा कन्फर्मेशन हो गया है, क्योंकि हम असली खानदान में, हो सकता है हम चर्च भी आ जाते हैं महीने में 2 बार, तो चेक भी लिख देते हैं महीने में 1 बार. And we think we have a passport and a visa to heaven. I'm sorry, you are in the wrong plane. It doesn't happen that way. It happens when we are abiding continuously and bearing fruit. Jesus talked about this important teaching towards the very fag end of his life, when he was about to be betrayed, and the very next day he was about to be crucified. Every beloved person in our family, we hang on to their words when they are spoken at their deathbed. जब हमारे अजीज कोई चीज़ इस संसार से छोड़ने जाने वाले होते हैं, और जो भी वो कहते हैं हम अपने कान लगाकर उसको सुनते हैं, और जो भी उन्होंने कहा है उसको पूरा करने का हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं. These are the words of Jesus on the deathbed. And so that's why they are so important to us. Chapter 15 verse 8, 15वें अध्याय का 8वां पद मेहरबानी से पढ़ दीजिए. Fruit is important, my dear friends, because Jesus says it is to my Father's glory. ये परमेश्वर की महिमा है, उसका जलाल होता है इस बात में कि जब हम एक फल लाने वाले मसीही बन जाते हैं. God is glorified in us. God desires His glory in us. खुदावंद ने बनाई हमें इसलिए है, खुदावंद का मकसद ही हमारे मसीह को इस हमारे जीवन में भेजने का ये है, और उसका हमारे लिए मारे जाने का मतलब यही है कि हम खुदा की महिमा अपने जीवन में करें. And how do we do that? There is only one way. Jesus says, my Father is glorified when you abide in me and bear fruit. Not just abiding, bearing fruit. To give Him the glory that God deserves, a disciple needs to be a fruit-bearing branch. And when our life is an abiding life, a fruitful life will happen and God will be glorified. उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं मेरे प्रियो. कोई सीक्रेट ये नहीं कि उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा और देखेंगे हम आगे उसमें, लेकिन उसका एक ही सीक्रेट है और एक ही काम जो मुझे और आपको करना है, उसमें बने रहो. Secondly, Jesus said, the fruit is so important because it not only brings the Father glory, but it is for our joy, rather full joy. पढ़ दीजिए उसका 11वां पद, 15 अध्याय का 11 पद, 15:11, John 15 verse 11. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे. ये सब हाँ जी पढ़ दीजिए. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. हाँ, ये सब बातें जो मैं तुमसे कही हैं, जब मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ, I will not have the time to talk to you about these things anymore. ये मेरी आखिरी रात है आपके साथ में, प्रभु कहता है, और मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. Can you imagine Jesus on his deathbed, on his last night on earth, is talking about joy. He's talking about his joy and he's talking about our joy. पढ़ दीजिए मेहरबानी से उस आयत को मेहरबानी से दोबारा से कोई और पढ़ दे. I have told you this so that my joy may be My joy may be in you. may be in you
and that your joy may and your joy may be be complete. full, complete. We have joy which can be completed by Christ's joy. हमारा आनंद खुदा में बने रहने से पूरा हो जाए, और खुदा में जो आनंद है, he was happy, he was literally very, very happy. He was not sorrowful at that night. And he said, this is the kind of joy I want you to have. I want to transfuse you with this joy if you attach yourself with me and continue to abide in me. यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुम में पाया जाएगा और तुम्हारा आनंद उससे पूरा हो जाएगा. That's why fruit is important in our life. Number 3, C. It's important. Fruit is important in a believer's life because God wants you to have a productive life. खुदावन की ये इच्छा है कि मैं और आप यीशु मसीह के चेले उसकी कौम एक फलवंत कौम हो. जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो मेहरबानी से आप देखिएगा, उसमें पाया गया हमेशा खुदावंद ने जब इजरायली कौम को बरकत दी तो हमेशा उसने कहा कि फूलो फलो और सारी दुनिया में फैल जाओ. He wants people to be productive. He wants people to multiply. He wants blessings for them. He wants the best for them. खुदावंद सब अपने चेलों के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ अच्छा चाहता है. He says, I have good plans for you in Jeremiah. I don't want to harm you in any way. And therefore it is God's desire that He wants us to be fruitful. खुदा चाहता है कि हम उसमें फलवंत हो सके. पुराने नियम में it's about 106 times the word fruit has been used. फल का इस्तेमाल 106 बार पुराने नियम. केवल यीशु मसीह ही नहीं बात कर रहा है यहाँ पर, पूरी बाइबल में इसके बारे में लिखा है. नए नियम में 70 times it has been used. The word fruit, it talks about the word fruit. So it's very, very important. Out of 27, 24 books in the New Testament talk about the fruit. Out of these 27 books, 13 or 14 are written by Paul. In each and every book of Paul, he talks about the fruit. Every book of Paul, he talks about the fruit, bearing fruit. Every one of Paul's letters has to do with the fruit, bearing Christian. So you know how important it is for us to be a fruitful branch. कितना ज़रूरी है कि खुदा हमें चाहता है वो फल देखना जो हमारे लिए उसने रखे हुए हैं. पुराने नियम से साम 1:1 मेहरबानी से कोई पढ़ दे. कुछ ही आयतों को हम देखेंगे जल्दी. So even in the Old Testament, पुराने नियम में भी, who is the blessed man? कौन है धनी व्यक्ति? धनी नहीं, धन्य व्यक्ति, sorry. Who is the blessed man? Who is the godly man? Who is the righteous man? कौन है जिसको परमेश्वर धन्य कहता है? A fruit bearing person. जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों में खड़ा होता है और न अन्य पापियों के मार्ग में खड़ा होता न चलता है और न खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है. न बैठता है. Sit, walk, stand. You remember Ephesians? उसको तो कभी भूलेंगे नहीं. Sit, walk, stand. कहाँ पर? खुदावंद में. ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में, ना और कहीं पर. और क्या होता है उसके साथ में? आगे पढ़िए. It's a fruit bearing person. It's a fruitful person. जिसको खुदा ने हर एक प्रकार की आशीष दी है. पानी के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है, वो खुदा के कलाम में बना रहता है, खुदा में बना रहता है. वैसा व्यक्ति हमेशा fruit bearing person. God's life has productivity in it. नए नियम में भी मेहरबानी से पढ़ दीजिए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 22 पद. गलातियों 5:22. Galatians chapter 5 verse 22. Okay, we have the Spirit of God in us. खुदा का कलाम, खुदा की आत्मा हम कहते हैं कि हमारे अंदर है, लेकिन खुदा का कलाम ये भी कहता है कि खुदा की कलाम, खुदा की आत्मा, खुदा की रूह के क्या है? फल.
सकते हैं कि खुदा की रूह हमारे अंदर है? पौलुस कहता है खुदा की रूह के क्या होते हैं? फल होते हैं। कौन कौन से फल हैं? धीरे धीरे। Love, लव, joy, जॉय, peace, पीस, patience, पेशेंस, kindness, काइंडनेस, goodness, गुडनेस, faithfulness, फेथफुलनेस, gentleness, जेंटलनेस and self-control. and self-control. How many? Did you count? 9. 9 fruits of the Holy Spirit. खुदा ने यदि चाह तो इनके ऊपर किसी दिन और हम बात करेंगे कि पूरा मैसेज इसके ऊपर हम बात करेंगे, fruits of the Spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले पौलुस ने कहा कि यदि हम कहते हैं कि खुदा की रूह हमारे अंदर है तो वो कैसे दिखाई देगा? इन फ्रूट्स के द्वारा से। So God has designed it to be a part of the believer. इन सारी चीजों को, ये प्रेम और शांति और आनंद और इन चीजों को खुदा ने inherently उन लोगों के लिए दिया है जिनके अंदर खुदा की आत्मा पाई जाती है। It is the product of God's life in you and in me. यदि खुदा की जिंदगी, खुदा की जो उसका कैरेक्टर है वो अगर हमारे अंदर पाया जाता है तो ये आत्मा की चीजें भी हमारे अंदर पाई जाएंगी। नेक्स्ट, bearing fruit is important because God is the source of the fruit. क्योंकि हमारी फल लाना, हमें फलवंत होना हमारे अंदर हमारी कुव्वत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो वचन हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना क्या कर सकते हो? बहुत कुछ, है ना? Zero, nada, nothing. You can do शून्य, बड़ा। And we think we can do so many things without Christ. Jesus says absolutely nil. But in me you shall bear fruit because I am the source of all goodness, of all fruitfulness. सारे फ्रूट का जो सोर्स है वो मैं हूं। हम केवल क्या है? ब्रांचेस, शाखाएं। हम अपनी तरफ से, अपनी ताकत से कोई भी फ्रूट, कोई भी अंगूर नहीं ला सकते, लेकिन जो उसमें बने रहते हैं तने में, उसके द्वारा से फ्रूट परमेश्वर उत्पन्न करता चला जाता है। होशिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 8 पद मेहरबानी से पढ़ दीजिए। होशाया 14 verse 8। Your fruitfulness comes from God Yahweh. यहोवा परमेश्वर में ही हमारा फ्रूट का सोर्स है। From me is thy fruit found. KJV says, From me is thy fruit found. क्योंकि सारी फ्रूटफुलनेस, सारा फ्रूट जो है तुम में अपने से नहीं हो सकता, लेकिन जब मुझ में बने रहोगे तो वो फ्रूट सारा तुम में होता चला जाएगा। फिलिपियों 1 का 11 भी पढ़ दीजिए मेहरबानी से। The book of Philippians in the New Testament, chapter 1 and verse 11. और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं फलफूल होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। धार्मिकता कहां से आ सकती है? हमारे अंदर से नहीं। धार्मिकता का सोर्स कौन है? यीशु मसीह, खुदा। उसकी धार्मिकता, उसका साल्वेशन, उसकी राइचियसनेस जब हमारे अंदर है तो पौलुस कहता है कि उससे भरपूर होते चले जाओ, उसके फल से भरपूर होते चले जाओ। By yourself you cannot achieve your salvation, you cannot be righteous, you cannot be holy, but when you abide in the Lord, the source of all holiness, righteousness and salvation, you shall be filled with its fruit. इसके राइचियसनेस के, उसके धार्मिकता के जो केवल परमेश्वर की ओर से आती है, उसके फल हैं। और उसके फलों से एक दो से संतुष्ट ना हो जाओ, पौलुस कहता है उससे भरपूर होते चले जाओ। Be filled with these fruits. So remember the principle that if we try it, we cannot have fruit in our lives. The source of all fruit is Jesus Christ. यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता है। So all spiritual power is then from God. All fruit comes from God. He talked about it a lot, and that's why it is important. He is the source of all fruit in our life. That's why it is so important.
And it comes from God, it is imparted to us like righteousness, like salvation. जैसे खुदावंद यीशु मसीह का नजात है, वैसे ही उसने हमारे अंदर वो फ्रूट लाने के दिया है। हम अपने आप से अपनी नजात नहीं कर सकते, हम अपने आप अपने फजल से अपना उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए खुदावंद ने बोला है कि उसके फ्रूट भी हम अपने आप से नहीं ला सकते, लेकिन वो उसमें बना रहेगा तो वो फ्रूट आगे ला सकता है। Thirdly, what is actually fruit that we have been talking about? ऐसी क्या बात है जो फ्रूट की आज बात हो रही है? That Jesus spent so much time, पुराने नियम में, नए नियम में, पौलुस ने, सब ने फ्रूट की ही बात करी, जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स में देखा। First, let me try to say what fruit is not. पहली बात, फ्रूट सक्सेस नहीं है। हम सोचते हैं कि जो बहुत बड़ा काम करें हम, जो हम बहुत ज्यादा होके दिखा दें कि ये सब बहुत बढ़िया, जो जीवन में सफलता प्राप्त कर ली हमने, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, हमारे पास बहुत बड़ा घर हो गया, हमने सबसे बड़े देश में आकर के और सबसे बड़ा सब कुछ अचीव कर लिया, दैट इज सक्सेस। श्योर, राइट, गॉड ब्लेसेस इट, बट फ्रेंड्स, दैट्स नॉट फ्रूट। In the Bible, nowhere success is ever synonymous with fruit. Some people think that if something is big, if there are a lot of people in it, it seems successful, and so it should be fruitful. It is the fruit of the Spirit. No. बहुत से लोग खड़ा कर सकते हैं लाखों की भीड़ को, बहुत से लोग बड़ा चर्च बना सकते हैं, और बहुत से अपना नाम कमा सकते हैं। Is that the fruit that Lord wants? No. आप लोगों ने किसी ने कैथीड्रल, कौन सा क्रिस्टल कैथीड्रल का नाम सुना? रॉबर्ट शूलर, famous preacher in the US, in California, built a huge building. It looks like a crystal building. That's why it's called Crystal Cathedral. For about 50 years, he preached about positive thinking and positive attitude, and did whatever, the Power Hour or something, a radio program which is still on. Everything, he was successful in the eyes of the world. खुदा के दुनियावी स्टैंडर्ड से बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा चर्च बना लिया, बहुत बड़ा कैथेड्रल बना लिया, बहुत बड़ा टीवी प्रोग्राम, millions of people around the world watch him. But do you know what happened recently? Crystal Cathedral and the ministry applied for bankruptcy and was granted. And just last week, a couple of months ago, the building was sold, thankfully, to a Catholic diocese. The Catholic diocese bought it, क्योंकि ये पूरी मिनिस्ट्री बैंक्रप्सी में चली गई। और न केवल वो, जब उनको हटा दिया रॉबर्ट शूलर ने, उसके बाद उनके अब बेटी, उनके दामाद और दूसरे लोगों ने उस बोर्ड पर कब्जा कर लिया। Now, when from millions of offerings in just last year, when December में उनकी ऑफरिंग 70% करीब डाउन हो गई। Ultimately, the board fired all the family members just last week. Success is not fruitfulness. You may have a name, you may have a fame, but you may not have the fruits that God desires in our life biblically. Number 2, success or fruit is not numbers. It's not big things in our life. As I said earlier, you don't say somebody has a lot of fruit because they have so many people they have won to the Lord. बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ा चर्च बना लिया, हजारों लोग उसमें आते हैं और बहुत बड़ा उसमें सेंसेशनलिज्म है, बहुत इमोशनलिज्म है और उसमें हीलिंग हो रही है और चंगाइयाँ हो रही हैं और बहुत बड़ा बजट है हर चीज का, और हम कहते हैं कि बहुत बंदा फ्रूटफुल है। Not true.
You can do that as a rock star too. Fruit is not numbers. All we have to do for fruit is not activities. All we have to do for fruit is not big programs, but only abiding in the vine, in Jesus Christ. बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें करने से हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते. फ्रूटफुल होने के लिए खुदा हमसे एक ही बात चाहता है, that we abide in the vine, in Jesus Christ, and fruit will be automatic. अपने आप ही फल निकलेगा, और वो फल होगा, वो सक्सेस नहीं हो सकती है, वो हो सकता है नंबर्स में ना. Now God loves numbers. God wants people to grow. But if our focus is only on that, then we are not truly being fruitful as abiding in the vine. So now we have been talking about what is fruit or what fruit is not. It's not success, it's not numbers, it's not programs, it's not activities. So what is it? Thirdly, my dear friend, secondly, the fruit is actually the virtues of Christ. Christ likeness. खुदावंद यीशु मसीह के जैसा व्यवहार, खुदावंद यीशु मसीह का चरित्र, खुदावंद यीशु मसीह की खूबियां. ये गीत इंडिया में अक्सर हम चर्च के बाद गाते थे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो. I don't know why don't we sing that. Can we sing that please after the service today? आपको ना पूरा आता है नहीं? काम किया था. वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस गाने को? Let the beauty of Jesus shine in me. That is the true fruitfulness. Not my fruits, not मेरी खूबियाँ, not मेरी activities, not मेरे program, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का चरित्र मुझ में से झांकने पाए, चमकने पाए. That is true fruitfulness. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 पद में बारी से पढ़ दीजिए. Galatians chapter 5 verse 22. फिर से. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, self-control. All of these were the qualities of my Lord Jesus Christ. Each one of them, हर एक इस खूबी को यीशु मसीह के सामने नाप करते चले जाओ, लिस्ट लेकर, टिक 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 टिक. We are to reproduce the life of Jesus, the character of Jesus by abiding in Him. जब वो कहता है कि मुझ में बने रहो, और जब वो कहता है जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, तो फल कैसा आएगा? मेरे जैसा नहीं, उसके जैसा. और उसका फल कैसा है? गलतियों 5:22 में ये सारे फ्रूट्स का जो इस्तेमाल किया गया है, वो कहते वो सारे क्राइस्ट लाइक फ्रूट्स. ये फ्रूट हमारे जीवन में खुदावन चाहता है. He wants these fruits by abiding in Him will become ours. All of these virtues do not come in a single day or even a single year, my dear friends. ये नहीं कि हम एक बार उससे अटैच हो गए तो बस नेक्स्ट डे हमारे अंदर सारे फ्रूट्स आ जाएंगे. No. We have to continue to abide in Him. They come in our life as a consequence of our continuous abiding in Jesus Christ. इन फलों को यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं तो मेरे प्रियो 1-2 साल में नहीं, परंतु लगातार यदि हम उनमें बने रहें तो अपने आप ही उसके प्रतिफल में ये फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे. You don't need to do anything. शाखाओं को अंगूर में केवल की लता में केवल बने रहना है, जुड़े रहना है, उससे भोजन प्राप्त करते रहना है, फल तो अपने आप ही होगा. And that's the same with you and me. A second thing, that's fruit is sharing our blessing with others in need. क्या है फल?
जो खुदावन चाहता है, जो कलाम के मुताबिक है, वो फल ये है कि जब हमने हमें जो बरकतें दी हैं खुदा ने, उनको हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं. That's considered as a fruit. We usually don't think about that as a fruit. जब हम अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम सोचते हैं कि वो फल नहीं है. When you supply a need for somebody, when you see somebody in need, and then you supply that need, that's a fruit according to the word of God. खुदावन का कलाम कहता है जब आप किसी को उसकी कमियों में देखते हो और उसकी कमियों को पूरा करते हो, चाहे खुदावन के काम की कमियां हो, चाहे खुदावन के मिशन की मिनिस्ट्री की कमियां हो, चाहे खुदावन के लोगों की कमियां हो, उनको कमियों को देख करके यदि आपके दिल में परमेश्वर काम करता है और आप उसको पूरा करते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है you are bearing fruit. That's considered as a fruit. Look at Philippians chapter 4 and verse 17. फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 17 पद. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Is it 4:17? Maybe I've got the wrong verse. ये नहीं Oh, sorry. ये नहीं कि मैं दान चाहता हाँ, हूँ, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए. पॉलुस prison में था when he received a substantial gift from the church at Philippi. फिलिपियों का चर्च जो यहूदियों का चर्च नहीं था, अन्य जातियों का, गैर कौमों का चर्च था, लेकिन खुदा के लिए बड़े पैशनेट थे, उसमें बने हुए थे. उन्होंने कोई गिफ्ट पौलुस की सेवकाई के लिए भेजा और यरूशलेम के लोगों के लिए भेजा, यहूदियों के चर्च के लिए भेजा. और पौलुस उसके लिए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कि तुम्हारी गिफ्ट की मुझे जरूरत है, बट व्हाट आई वांट टू सी दैट यू हैव फ्रूट. I desire fruit. And when you give to supply somebody's need, Paul considers it as a fruit of their abiding in Jesus Christ. खुदा में बने रहने का प्रतिफल है कि फिलिपियों की कलीसिया ने यरूशलेम की कलीसिया की जरूरत को पूर्ण किया, पौलुस के मिशन की जरूरत को पूर्ण किया. और पौलुस कहता है कि that's the fruit that I desire in your life. How big is that amount? Doesn't matter. It's secondary. But you have that fruit. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारी जिंदगी में वो फ्रूट हो सके. So he considers gifts of God's ministry as the fruit of our abiding in Jesus Christ. रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 28 पद भी मेहरबानी से पढ़ दीजिए. Now Paul is talking about going to Rome. He writes a church at Rome, a letter to the church at Rome. और वहाँ कहता है कि जब मैंने एक और गिफ्ट उसको मिली, स्पेन की मिशन यात्रा को जाने के लिए उसको किसी चर्चेस ने गिफ्ट भेजी उनको, और उसको कहता है वो fruit. I received your fruit. And I want to have that fruit in Spain also when I'm going to Spain. And Paul, when he reached there, he wanted to gain that, use that fruit for the service of the Lord. तो मेरे प्रियो, जब हम खुद किसी की जरूरत को पूरा करते हैं, जब हमको परमेश्वर कोई जरूरत दिखाता है खुदा के लोगों की, खुदा की सेवकाई की, खुदा की मिनिस्ट्री की, उसके मिशन की, उसकी जरूरत की, उसकी चर्च की, और उसको हम अपने बरकतों से शेयर करते हैं, खुदा उसको और खुदा का कलाम उसको एक फ्रूट मानता है, वो हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा देखना चाहता है. तीसरा फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट? is our Christian walk, is our behavior, is how we live a Christian life. कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 पद मेहरबानी से पढ़ लीजिए. The book of Colossians chapter 1 verse 10. ये सब बातें वो बात कर रहा है क्रिश्चियन वॉक की, क्रिश्चियन बिहेवियर की, क्रिश्चियन लिविंग की. And he talks about that good works are a fruit that God considers as a fruit as a result of abiding in the vine in Jesus Christ. जब हम अपने वर्च्यूज को, खुदावन के वर्च्यूज को जब हम अपने अंदर से जो आत्मा के फल है उनको देखा, और ये कार्यों को भी, कामों को भी, जब हम अच्छे काम करेंगे, हम अच्छा व्यवहार रखेंगे, हम अच्छे तरीके से क्रिश्चियनों की तरह रहेंगे, तब भी उसको खुदावन कहता है कि वो एक फ्रूट है जिसको वो हमारे जीवन में चाहता है. लास्ट वन,
when new people are added into the kingdom of God, when new converts have changed and transformed their life and added to the church, that is also considered a fruit. जब खुदा के कलाम से सुनने के द्वारा, मनादी के द्वारा से लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, वो कलीसिया में जोड़े जाते हैं, सुसमाचार के द्वारा से उनके जीवन में परिवर्तन होता है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, that surely is a fruit that God considers as the fruit bearing branch. हमारी कलीसिया यहाँ पर मेरे ख्याल से 15-16 साल पुरानी है. How many people have we led into the Lord? Think of it, introspect. आज से 15 साल से अब तक कितने लोगों को हमने खुदा के कलाम से, खुदा की कलीसिया में नहीं, खुदा के राज्य में जोड़ा है. Their lives have been transformed. They have changed. That's a fruit that God wants from His church, from His people. And I don't need to go into detail of what will happen if we don't bear fruit. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ दीजिए मेहरबानी से. पहला कुरिन्थियों 15:16. Yeah, in many translations it doesn't say converts. It says the first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. पहले व्यक्ति जो कलीसिया के साथ अखाया में जोड़े गए, स्टेफनस का घराना, उसको पौलुस कहता है वो फ्रूट थे, fruits of the ministry. Paul calls this particular house of Stephanus the first fruits of Achaia. अखाया में जाकर सेवा करी पौलुस ने, और उसके द्वारा से जो पहले लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने और उसकी कलीसिया में जुड़े, वो स्टेफनस का घराना था, और पौलुस के अनुसार वो फर्स्ट फ्रूट थे. That's a fruit that God wants in the kingdom of God, in the mission of God. एक और आयत मेहरबानी से पढ़ दीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. रोमियो पहला अध्याय उसका 13वां पद, Romans 1:13. अन्य जातियों में पौलुस ने बहुत काम किया, और उसको पौलुस क्या कहता है? मुझे फल मिला. I received a lot of fruit among the Gentiles. And now he is going to the church at Rome. He is going to the Romans, and therefore he writes a letter. What is his desire there also? I am desiring, this is my prayer, that as I have reaped this harvest of rich fruit among the Gentiles, when I come to you, that I may also get some fruit. I may get some people added into the kingdom. खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद के कलीसिया में, खुदावंद के साथ में कुछ लोगों को जोड़ सकूं, ये मेरी प्रार्थना है, जबकि मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं. ये मेरी भी प्रार्थना है मेरे प्रियो, और ये हमारी सबकी प्रार्थना है कि जो हमने 15 साल में नहीं किया है, वो हम इस साल में करने वाले बन सके, वो आने वाले साल में बन सके, कि हम एक फलवंत कलीसिया बन सके, एक फलवंत इंडिविजुअल क्रिश्चियंस बन सके. And we can do that when we abide in the vine and bear fruit. For the word of God says, the one that doesn't bear fruit will be cut off, thrown away, cast away, for it to be condemned eternally. May God bless us through these words.